Okay, so last time we have finished with operators and the different types of operators like arithmetic, relational, then logical operator, bitwise operator, then ternary operators, right? All these categories we have finished. Today we'll start somewhat different topic, that is looping. Okay? So you might be thinking that what is the use of loop? Why we use loop, right? Let's understand by the example. Suppose I want to display 1 to 10 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Suppose, okay, I want to display 1 to 10 numbers, right? And suppose there is no loop concept. Okay, we are just imagining that there is no loop concept. So uh, our program flow will be like this. Main, this is the entry point, right? At the start, we include the header files. Our program had include std stdio.h. Then the next one is hash include conio.h, right? Then the entry point of program, that is void main function. It is mandatory to write void main, right? It is the entry point of our program, right? Suppose I want to display 1 to 10 numbers, right? Then again, again, uh, once you enter the main function, here we declare the variable, right? Suppose int a is equals to 1. I'm initializing it by 1, right? But the problem is, uh, I want to display 1 to 10, right? But for this, I can't take any variable, right? Because every time the number should be changed, right? So I have to write, I have to write printf, printf for how many times? 10 times. So I'll display 1 here, and I will display 2 over here, right? Okay. Then printf display 3 over here, right? So likewise, I have to repeat it for the 10 times, right? So every time I'll display the different number. First time 1, then 2, then 3, then 4, like this. In printf I'll put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how many lines of code we have to write in order to display this 1 to 10 number? 10, 10 lines of code, right? If there is no loop concept, i have to I have to write this printf. I have to write this printf for 10 times. How many times? 10 times, right? But what if I want to display from 1 to 100? 1 to 100. So I have to write this printf for 100 times. What if I want to display 1 to 1000? So I have to write printf for 1000 times. So is it possible to write printfs for this number of times? No, right? We can't write it manually. So there is a solution for this, right? There is a solution for this. Okay. If you want repetition of code, repetition of code for several times, then we use loop. Then we use loop. This is the use of loop. Okay. Repetition of several times, repetition of code. Repetition of code for several times, then we use what? Loop. Okay. Again, there are different types of loops. Okay.
Now I think you might have understood why we use loop. Okay, so suppose I want to display 1 to 10 numbers. So for that, I need to write this printf for the 10 times. Likewise, if I want to display 1 to 100 numbers, then I have to write printf for the 100 times and so on, right? But I don't want to do this, okay, because this is very hectic work. Right? It's very time consuming work, right? So instead of that, I will use loop. Okay, loop will repeat this printf for each and every time. Okay, so for each and every execution, it will display the different value. It will display the different value. Like there are three types of loops. The first one is for loop, and the second one is while loop, and the third one is do while loop. Okay, these are the three types of looping in C programming. Okay, okay. But before understanding, just a minute. Okay, so we have three types of loops: for loop, while loop, and do while loop. We will compare all these loops, but before that, we will see one by one. What is for loop? Okay, I want to do the same task. I want to do the same task. That is, I want to display numbers from 1 to 10. So before that, I need to understand. I must know what is the syntax of for loop. What is the syntax of for loop? Okay, so let's see the syntax. So first of all, we do the initialization part. Okay? Initialization part. Initialization. Then you have to give the semicolon after that. After initialization, okay. The first part is a initialization. Then the second one is the condition part. Okay. Then give the semicolon. Then the last one is updation. Last one is updation. Okay. And then we have to write opening and closing curly braces. Okay. Now inside this opening and closing curly braces, I will write my logic here. Okay, I will write my logic here, right? Whatever code I want to repeat for the several times, that I will write inside the loop. Okay, so this is for loop. So in bracket we write the initialization, then the condition part, and the updation part. Okay, and inside this I will display whatever value I want to display over here. Okay, suppose let's see the syntax by example. Example is what I want to display 1 to 1 to 10 numbers. Okay, 1 to 10 numbers. So let's apply this syntax for what is the initialization part? Initialization means what? 1 to 10 numbers, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So what is the initialization part? Initialization is nothing but the starting point. Okay, so every time it might be possible that means every time you have to figure out
that what will be your starting point and what will be your ending point, right? So this initialization is nothing but your starting point. Okay, so it might be possible that these tasks might be different every time, right? Because it depends on the problem statement. So my problem statement is what here? I want to display 1 to 10 number. This is my problem statement. I want to give the solution for this, right? So this is my initialization part. Okay, this is my initialization. Okay, so obviously the numbers are changing. For the numbers should be changed for each and every state. 1, 2, 3, 4. So for that, I will declare one variable, integer I, right? Because the value is going to vary. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, and so on, right? So I will declare some variable for this. Okay, integer I, suppose. Okay, then this will be nothing but a counter variable for this loop. Okay, this variable we will use here in this loop. Initialization means what? The starting point, this one. Okay, so I is equals to 1. So after that, you have to, after initialization, you have to give the semicolon. Remember, you have to give the semicolon. What is next one? Condition. Condition means what? Up to which number? Up to which number you have to display it? I want to display it up to 10. Okay, I want to display it up to 10. So I is less than or equals to 10. ओके, कहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे? 10 तक. 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, राइट? यू कैन कंपेयर इट. 1 पहले आई का वैल्यू कितना रहेगा? 1. 1 इज लेस देन 10, ट्रू, बराबर. फिर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा. 2 इज लेस देन 10, यस, ट्रू. समझ में आया क्या? सो आई का वैल्यू जो है वो कैसे वैरी हो रहा है? लेस देन और इक्वल टू 10, बराबर ना? 1 is less than equal to 10, 2 is less than equal to 10, 3 is less than equal to 10, and so on, right? So that's why I have written the condition part depends upon the problem statement. It should start with 1 because this is nothing but the initialization part. Then the condition is the I value should be less than or equals to 1. You can easily understand. The I value should be what? Less than or equal to 10. Less than equal to 10 तक मुझे चलाना है, right? Next one, what is the updation part? Okay, in some of the book you will find out updation. Updation means what? Increment of decrement. In some of the book you might find this updation means what? Increment and decrement. Okay, but the correct term is what? Updation. Okay, so let's see. I'll give the semicolon. Updation means what? By how many numbers the value is updating. कितने से अपडेट हो रहा है? 1 से. 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, बराबर. The difference between these two numbers, right? Each and every pair के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का ही है, बराबर. 1 to 2 में 1 का है, 2 to 3 में, and so on, right? So the updation is I plus plus means what? 1 से वैल्यू बढ़ रहा है हर बार. 1 से वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ पे. Either you can write I plus plus. I plus plus means what? I is equals to I plus 1. Either you can write like this. Okay, just for simplicity, I am writing I plus plus. Now you know what is I plus plus, right? I plus plus means what? The value will be incremented by 1. Barabar? Now I have to write some logic over here, right? In opening and closing curly braces. अभी मुझे क्या करना है? I का वैल्यू डिस्प्ले करना पड़ेगा. I का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले करना पड़ेगा. किससे? printf से. डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? printf फंक्शन. इसको डिस्प्ले करना है मुझे I को, बराबर. I का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा यहाँ पे? %d आएगा, बराबर. यहाँ पे स्लैश n दे देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन पे जाए.
डबल कोट कंप्लीट, कॉमा, हाय एंड सेमीकोलन। यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा। रिमेंबर, लूप के बाद यहाँ पे सेमीकोलन देना नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन देना नहीं है। लूप के बाद कभी सेमीकोलन नहीं देते हैं। लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसके लिए हम लोग सेमीकोलन देते हैं। रिमेंबर, वी नेवर यूज सेमीकोलन ओवर हियर। ओके, remember this. Okay, so simply I have displayed the value of I. Now check the execution. अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा हम लोग देखते हैं। ओके, I का वैल्यू पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया I का वैल्यू शुरू में कितना रहेगा 1। ओके, I का वैल्यू कितना 1 रहेगा। ओके, सो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। ओके, वंस द इनिशियलाइजेशन इज डन, आफ्टर दैट द कंट्रोल गोज टू कंडीशन। ओके, इनिशियलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, condition is true, then control will go inside. Inside, control goes inside loop. Okay, तो I का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगा। 1 is less than equals to 10, true or false? Yes, it is true. अगर जैसे ये ट्रू होता है, कंट्रोल अंदर जाएगा, प्रिंटफ पे जाएगा, क्या करेगा, आई का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। आई का वैल्यू शुरू में कितना है 1 है, तो क्या डिस्प्ले करेगा 1 डिस्प्ले करेगा। ओके, उसके बाद कंट्रोल यहाँ से फिर से यहाँ पे जाएगा। फिर डिस्प्ले करने के बाद यहाँ से कंट्रोल फिर कहाँ पे जाएगा, अपडेशन पार्ट पे जाता है। अपडेशन यहाँ पे जाएगा। फिर अभी पहले आई का वैल्यू 1 था, प्रिंटफ से वो डिस्प्ले हो गया, फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। अभी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 is less than or equals to 10, true. 2 is less than or equals to 10 is what, true. Again the control will go inside and it will display what, 2. It will display what, 2. फिर से कंट्रोल 2 डिस्प्ले करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा। नाउ द वैल्यू विल बिकम 3 is less than equals to 10, yes true. अंदर आएगा कंट्रोल, इट विल डिस्प्ले वैल्यू ऑफ आई दैट इज 3। यहाँ से फिर से यहाँ पे कंट्रोल जाएगा। अभी आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 is less than equals to 10, true. It will come inside, it will display 4. Again the control will come here, right? It will become 5 now. 5 is less than equals to 10, yes true. अंदर आएगा, 5 डिस्प्ले करेगा एंड सो ऑन। ओके, इनिशियलाइजेशन जो है, ये स्टार्टिंग का इनिशियलाइजेशन वो एक ही बार होता है। रिमेंबर, initialization is done for only one time. इनिशियलाइजेशन कितनी बार होगा, इनिशियलाइजेशन इज डन फॉर ओनली 1 टाइम। इनिशियलाइजेशन एक ही बार हुआ 1 से, उसके बाद सिर्फ क्या हुआ चेंजेस, कंडीशन चेक किया, ट्रू है, अंदर आया, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, ट्रू है। कब तक चलेगा ये, जब तक ये 10 नहीं वैल्यू होगा तब तक। बराबर, जैसे ही 9 को डिस्प्ले कर दिया, 9 को डिस्प्ले कर दिया सपोज, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 10 हो जाएगा। 10 is less than equals to 10, true. लेस नहीं है बट इक्वल तो है। लेस देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या होता है, या तो फिर लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। बराबर, लेस नहीं है बट इक्वल तो है, तो फिर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। सो कंट्रोल विल गो इनसाइड एंड इट विल डिस्प्ले 10 को डिस्प्ले करेगा। बराबर, अभी फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। अभी 10 से कितना हो जाएगा वैल्यू, 11 हो जाएगा। नाउ चेक आउट द कंडीशन, 11 is less than equals to 10. Now the condition is false.
जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आ जाएगा, लूप अभी लूप के अंदर नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई रिटर्न कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल गोज इनसाइड. If the condition is false, if the condition is false, condition is false, then if false, then control goes out of the loop. Control goes out of the loop. Okay, because if the value is 11, then 11 is less than equals to 10, condition is false, लूप के बाहर आएगा. अब ये लूप के अंदर जाएगा नहीं और वो उसको डिस्प्ले करेगा नहीं. बराबर. So these many points you have to remember, right? So this is the initialization, and initialization is done only one time. उसके बाद क्या क्या रिपीट होगा, ये रिपीट होगा. बराबर. कंडीशन पार्ट और यही पे खेल चलता रहेगा उसका. इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा, ट्रू रहेगा, अंदर आएगा, डिस्प्ले करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, वैल्यू अपडेट करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से अंदर आएगा, फिर डिस्प्ले करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा. ओके, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये जो लूप है ना, ये जो लूप मैंने यहाँ पे लिखा है, आई का वैल्यू मैंने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे ही चलेगा. दिस इज ऑल्सो वैलिड. ओके, बट रिमेंबर यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा फिर आपको. देयर इज 2 सेमीकोलन इन द फॉर लूप. 2 सेमीकोलन आपको देने ही पड़ते हैं. ये देखो, द फर्स्ट सेमीकोलन एंड दिस इज द सेकंड सेमीकोलन. 2 सेमीकोलन देना जरूरी है फॉर लूप में. इट इज मैंडेटरी टू डू 2 सेमीकोलन ओवर हियर. ओके, तो आपको जो भी सिंटैक्स प्रॉपर लगता है, अगर आपको ये प्रॉपर लगता है तो ये फॉलो करो, या फिर आपको स्टार्टिंग में ही उसको वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है तो भी चलेगा, बट सेमीकोलन देना पड़ेगा. बाद में ये कंडीशन लिखो एंड देन आफ्टर दैट वी कैन राइट द अपडेशन पार्ट. All of you understood? Yes or no? Yes, sir. Only 2 students responded. What about others? Yes, sir. Prerna, Harsh. Understanding or not? Yes, sir. Everyone? Okay. So this is how the for loop works. Okay. So now you might have understood what is the use of loop, right? मैंने सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट में ही 1 to 10 नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया. अगर मैंने लूप यूज नहीं किया तो मुझे 10 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ता. इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार. बराबर. अगर मुझे अभी 1 to 10 है इसलिए ठीक है, 10 टाइम्स तो लिख सकते हैं, उतना टाइम भी होता है. 1 to 1000 टाइम्स अगर मुझे नंबर डिस्प्ले करना है तो क्या चेंज आएगा बताओ इसमें. व्हाट विल बी द चेंज? लूप में क्या चेंज आएगा? 1 to 1000 नंबर चेंज करना. कंडीशन में चेंज आएगा. हाँ, खाली कंडीशन चेंज करना पड़ेगा. दैट्स इट. यहाँ पे 10 की जगह पे 1000. दैट्स इट.
हो गया, बराबर, समझ में आया? अगर सपोज मुझे suppose I want to display the even numbers, मुझे इवन नंबर्स डिस्प्ले करना है, क्या करोगे बताओ? इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, बताओ कैसे आएगा? पता है ना इवन नंबर्स? ये सर नो, यस और नो, क्या आएगा बताओ? इवन नंबर्स चाहिए मुझे, इवन नंबर्स चाहिए, बराबर ना? लाइक 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चाहिए मुझे नंबर। क्या क्या चेंजेस आएगा बताओ, सोचो और बताओ मुझे, व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू? सर वो फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन डाल के हम लोग आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 करके कर सकते हैं। करेक्ट, और और क्या आएगा बताओ? ये भी एक लॉजिक है, बराबर है, बट मुझे लूप से करना है, कि कैसे कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, ये आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है? कितने से वैल्यू बढ़ता है यहाँ पे? 1 1 से, बट इवन नंबर में वैल्यू कितने से बढ़ता है? इवन नंबर में वैल्यू कितने से बढ़ता है? कितना डिफरेंस रहता है बताओ इवन नंबर्स में? 2 का इवन नंबर्स में डिफरेंस कितने का रहता है? दो का सर। अरे इवन नंबर्स में डिफरेंस कितने का रहता है? 1 का, सर। बराबर। तो आई प्लस प्लस मतलब क्या रहता था कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, बराबर, आई प्लस 1 ऐसा, बराबर, क्योंकि हम लोगों ने 1 to 100 नंबर डिस्प्ले किया, उसमें 1 का ही डिफरेंस था। अगर आपका डिफरेंस 2 का है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर, बराबर, यस और नो? अभी मुझे बताओ ये लूप डिस्प्ले क्या करेगा? मैंने 1 से लिया है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। बट मुझे ऑड नंबर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इवन नंबर्स। तो 1 की जगह पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? 0 0, करेक्ट, मुझे 0 लेना पड़ेगा, समझ में आया? और 1 to 100 ही चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूंगा। 1 to 100 के बीच में जो इवन नंबर्स है मुझे वो डिस्प्ले करना है, बराबर। तो इसके लिए मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, यस द कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा 0 को डिस्प्ले कर देगा। फिर से यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, यस कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा 2 को डिस्प्ले करेगा, बराबर। फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, 2 प्लस 2 हाउ मच? 4, बराबर। Again it will check the condition, 4 is less than equals to 100, yes the condition is true, again the control will come inside and it will display 4,
again the control will go here. Now the value of I will become 6 because the previous value was 4. 4 plus 2 is how much? 6. I का value 6 हो जाएगा. So 6 is less than equals to 100. True. It will display 6. Again the control will come here. Now 6 plus 2, 8. 8 is less than equals to 100. True. Come inside. It will display 8 and so on. Understood? Understood or not? अभी इवन नंबर्स की जगह पे मुझे ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं. बताओ क्या 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 चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे प्रोग्राम में. इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा. I is equal to 1. करेक्ट करेक्ट. दैट्स द ओनली चेंज. I is equals to 1 हो गया. दैट्स इट. हो गया मेरा ऑड नंबर्स का भी प्रोग्राम. ये 1 to 100 में जितने भी ऑड नंबर्स है वो डिस्प्ले कर देगा. तो मुझे 1 से इनिशियलाइज करना है बस. दैट्स इट. 1 plus 2 3. अगेन नेक्स्ट टाइम 5 कर देगा उसको एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? आप एग्जीक्यूशन चेक कर सकते हो खुद से. ऑड नंबर्स आ रहे हैं. 1 3 5 7 and so on. Okay, shall we go to the next example? Now let's understand this example. Write a program to find the factorial of a given number. एक नंबर जो भी मैं नंबर दूंगा उसका मुझे क्या करना है. उसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. एंड यू नो व्हाट इज मीन बाय फैक्टोरियल, राइट? 5 फैक्टोरियल कितना आएगा? What is 5 factorial? 120. 5 factorial is how much? 1 into 2 into 3 into 4 into 5. That is how much? 125. बराबर. ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग फैक्टोरियल. Yes or no? Right? तो सिनारियो तो ऐसा है. ये नंबर कोई भी हो सकता है. It can be 5, it can be 7, it can be anything. बराबर? It can be anything. But before discussing this, let me tell you here only. Okay. अभी सपोज अभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया आपको 1 to 100 के जितने भी ऑड नंबर्स है वो मुझे डिस्प्ले करना है. बराबर. बट ये हर टाइम फिक्स थोड़ी होगा कि 1 to 100 ही करना है मुझे. 1 to 1000 भी कर सकता हूँ मैं. 1 to 10,000 भी कर सकता हूँ. बराबर. तो ये क्या हो गया अपना, ये वैल्यू फिक्स्ड हो गया कि इसी रेंज तक मुझे डिस्प्ले करना है. बराबर. बट मुझे मेरा प्रोग्राम डायनेमिक बनाना है कि यूजर जो बोलेगा वो रेंज तक उसने डिस्प्ले करना चाहिए. बराबर. अगर यूजर ने बोला कि मुझे 1000 तक ऑड नंबर डिस्प्ले करना है तो वो चेंज होना जाना चाहिए. तो बोला कि मुझे 10,000 तक ऑड नंबर डिस्प्ले करना है तो वो भी उसने करना चाहिए. सो क्या चेंज करेंगे हम लोग बताओ. उसमें सेम प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. बताओ. मुझे डायनामिक इनपुट लेना है.
I want to take dynamic input for my program. Dynamic input मतलब क्या? The input should be according to the user's choice. Input के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बताओ? scanf, करेक्ट, scanf. तो उसके पहले मैसेज देते हैं ना हम लोग printf से, बराबर? Enter the value for n. हम लोग एक n वेरिएबल ले लेते हैं सपोज, बराबर? एक n वेरिएबल ले, एंटर द वैल्यू फॉर n. तो i के साथ साथ मुझे और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, n. n किसके लिए? रेंज के लिए, कि कहाँ तक मुझे डिस्प्ले करना है, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहेगा, इसके लिए मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा, बराबर? तो मैंने i जो काउंटर वेरिएबल था, ये जो काउंटर वेरिएबल था i, इसके साथ मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, n वेरिएबल. ओके, तो इसके लिए मुझे वैल्यू देना, इसके लिए मैंने इसका मैसेज डिस्प्ले कर दिया. अब इस scanf से मैं इनपुट लूंगा, scanf से मैं इनपुट लूंगा %d, %n, बराबर? अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 की जगह पे क्या करना पड़ेगा? n लिखना पड़ेगा. अभी मेरा प्रोग्राम डायनेमिक हो गया. अभी मैं n का वैल्यू अगर 100 दूंगा तो वो 1 to 100 के जितने भी ऑड नंबर्स है उसको डिस्प्ले करेगा. अगर n का वैल्यू मैं 10,000 दूंगा तो वो 1 to 10,000 तक जितने भी नंबर्स है उन सबका, जितने भी ऑड नंबर्स है उन सबको डिस्प्ले करेगा. समझ में आया डायनेमिक इनपुट कैसे लेते हैं? सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन में जो हम लोग नंबर्स लिखते थे सिंपली 100, 10 लाइक दैट, उसकी जगह पे मैंने एक वेरिएबल लिया n, और वो वेरिएबल का वैल्यू मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ से मैं इनपुट लूंगा. अगर मैंने 100 लिया तो ये लूप 100 तक चलेगा. अगर मैंने यहाँ से 1000 लिया तो ये लूप 1000 तक चलेगा. अगर मैंने 10,000 लिया तो ये लूप 10,000 तक चलेगा. So this is how we can make our program dynamic. Okay, so this is how we can make our program dynamic, right? Now let's understand this. So I want to find out the factorial of a given number. Given number कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी 25 भी हो सकता है, anything. तो इसके लिए मैंने आपको n इनपुट लेके ये समझाया, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे वो समझाने का काम नहीं रहेगा. okay? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे n ले लिया. n का वैल्यू जो है, एंटर अ नंबर, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. उस पर्टिकुलर नंबर के लिए उसमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहिए. ये तो पता है आपको, वेदर फॉल्स स्टार्टिंग में लिखते हैं मेन फंक्शन. आई वेरिएबल क्यों यूज किया हम लोगों ने? क्यों यूज किया? क्योंकि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है. ये क्या है? सीक्वेंस. ओके, so wherever you will find out sequence of a number, sequence of the numbers, then use loop. अगर आपको सीक्वेंस दिख रहा है नंबर्स का तो आपको सिंपली लूप यूज करना है. दैट्स इट. ओके, 5 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Is this sequence or not? ये सीक्वेंस है या नहीं है? Yes, this is a sequence. सीक्वेंस है तो मुझे लूप यूज करना पड़ेगा. मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप यूज करना पड़ेगा, बराबर? That's why we have given this note. Sequence of number, then use loop. Okay? तो 5 फैक्टोरियल तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं. सेम 7 फैक्टोरियल रहेगा, उसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, right? And like that. Okay? सो हम लोग लूप यूज करेंगे. ये तो फिक्स हो गया. अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा लूप का? 1. तो मैंने इसको इनिशियलाइज किया 1 से. ओके,
कहां तक चलाना है लूप, कहां तक चलाना है। अभी अगर मैंने 5 इनपुट लिया तो 5 तक चलेगा, 7 इनपुट लिया तो 7 तक चलेगा, 8 इनपुट लिया तो 8 तक चलेगा एंड सो ऑन, बराबर। बट हर बार अगर मेरा इनपुट चेंज होते जाएगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर अ नंबर और स्कैनएफ से वो वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे कोई नंबर देने से बेटर है, कोई नंबर देने से बेटर है कि हम लोग एन यूज करेंगे, बराबर। अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया तो वो 5 तक चलेगा। अगर मुझे 5 का सपोज फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 तक चलेगा। अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो ये 7 तक चलेगा एंड सो ऑन। ओके, सो फॉर दिस एग्जांपल वी आर जस्ट फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ 5। बट आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो बाद में, लेकिन हम लोग कंसीडर सिर्फ 5 के लिए कर रहे हैं। ओके, तो मुझे क्या लिखना, यहाँ पे मैंने n का वैल्यू सपोज 5 लिया है, बराबर, तो ये 5 तक चलेगा, बराबर। और डिफरेंस कितने का है वैल्यूज में, व्हाट इज द डिफरेंस, एक का ही है, डिफरेंस कितने का है, एक का ही आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई i प्लस प्लस, और यू कैन राइट i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड द सेम चलता है। ओके, i प्लस 1 लिखो या फिर i प्लस प्लस लिखो, 1 एंड द सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हो। इफ यू आर कंफर्टेबल विद i प्लस प्लस देन इट इज ओके। Yeah, समझ में आया, स्टार्ट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, नथिंग बट द वैल्यू ऑफ n। ओके, ये तो डायनामिक चेंज ही होते रहेगा हर बार, बराबर। और डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो हो जाएगा मेरा अपडेशन में, हो जाएगा मेरा अपडेशन में। ओके, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बराबर। मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है, ये पहला जो नंबर है 1 उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, देन मल्टीप्लाइंग विद 4, देन मल्टीप्लाइंग विद 5। ओके, तो ये i जो वेरिएबल था ये हम लोगों ने काउंटर वेरिएबल यूज किया लूप में, ये हमारा क्या है, काउंटर वेरिएबल है, उसका रोल अलग है। ये n वेरिएबल किसके लिए यूज किया है कि कौन से नंबर का फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने n वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी मैं एक फैक्ट वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स्ट्रा का, जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो फैक्ट को मैंने इनिशियलाइज किया 1 से। ओके, फैक्ट वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया 1 से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे 1 से क्यों किया, फिर 0 से क्यों नहीं किया, क्यों पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन। अगर मैंने उसको 0 लिया, सपोज मैंने अगर इसको 0 लिया तो स्टार्टिंग में क्या होगा, i का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि n का वैल्यू मैंने 5 लिया, सपोज ट्रू हो जाएगा, अंदर आएगा। फैक्ट का वैल्यू कितना है, सपोज मैंने 0 अगर लिया, 0 इंटू i, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार वो 0 ही बनती रहेगा, बराबर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बराबर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 से तो वो हर बार 0 0 0 ही होते जाएगा, बराबर। 0 इज मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, द मल्टीप्लिकेशन विल बी 0 ओनली, बराबर। इसके लिए मैंने इसको इनिशियलाइज किया 1 से, दैट्स व्हाई आई इनिशियलाइज दिस वेरिएबल फैक्ट वेरिएबल बाय 1। अगर आपको ऐसे ही कंफर्टेबल है तो आप यहाँ पे लिखो, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो फिर यहाँ से निकाल देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रिमूव इट फ्रॉम हियर। इधर देखो सेमीकोलन 2 ही है, ये एक सेमीकोलन है, ये दूसरा सेमीकोलन है, बराबर। इनिशियलाइजेशन जो है वो एक भी हो सकता है, मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे कॉमा देना है, मोर देन, ये पहला इनिशियलाइजेशन है, ये दूसरा इनिशियलाइजेशन है, दिस इज इनिशियलाइजेशन बिफोर दिस सेमीकोलन, रिमेंबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो जस्ट रिमूव इट, और इसको यहाँ पे भी रख दो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं इनिशियलाइज करना है, मुझे यहाँ पे करना है,
So that is also the one way by which you can initialize it here. Okay, तो more than one initialization हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं, बराबर. more than one updation भी हो सकता है, that is also possible. but the condition, ये कंडीशन एक ही बार होगा, एक से ज्यादा अपडेशन भी हो सकता है. मतलब यहाँ से फिर हम लोग कॉमा देंगे और कुछ भी लिखेंगे कंडीशन. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इनिशियलाइजेशन भी एक से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है. अभी सपोज मैंने इनपुट लिया 5, एन का वैल्यू मैंने इनपुट लिया है 5. ओके, आई का वैल्यू शुरू में 1 रहेगा. 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल विल कम इनसाइड, बराबर. फैक्ट का वैल्यू कितना है, 1 है. 1 इंटू आई का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू भी 1 है फर्स्ट टाइम के लिए. 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1. किसको असाइन हो जाएगा, फैक्ट वेरिएबल को. इसको असाइन हो जाएगा फैक्ट वेरिएबल को. ओके, फिर कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, 1 इंटू 1. इसमें अभी फैक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ओके, फर्स्ट टाइम के लिए आई का वैल्यू कितना है, 1 है. ओके, फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा. देखो, मैंने अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो प्रिंटफ है, फैक्ट का वैल्यू जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो मैंने अंदर क्यों नहीं लिखा. ओके, अगर मैंने यहाँ पे अंदर लिखा ये प्रिंटफ को, तो क्या करेगा, वो वैल्यू अपडेट करने के बाद 1 डिस्प्ले करेगा. मुझे 1 नहीं डिस्प्ले करना है, मुझे डायरेक्टली 125 चाहिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड what is the value of I is changing. I don't want to know about it. I just want 5 का फैक्टोरियल 125 होना चाहिए. That's it. 125 आना चाहिए मेरा. मुझे ये सब इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए मैंने प्रिंटफ को लूप के बाहर रखा. अगर मैं लूप के अंदर लिखूंगा यहाँ पे प्रिंटफ को, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, तो जो फैक्टोरियल का वैल्यू जो चेंज होते जाएगा वो हर बार डिस्प्ले करेगा यहाँ पे. ओके, तो मुझे वैसे नहीं करना. अभी आई का वैल्यू 1 हो जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है. फिर 1 से अपडेट हो जाएगा, मतलब क्या, आई का वैल्यू अभी 2 हो जाएगा. आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, बराबर. 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, एन का वैल्यू कितना है, 5. कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, बराबर. फैक्ट का वैल्यू फर्स्ट टाइम के लिए 1 था, बराबर. जब आई का वैल्यू 1 था, जब आई का वैल्यू 1 था, तब फैक्ट का वैल्यू 1 था पहली बार, बराबर. फिर बाद में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर. अभी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. आई इक्वल टू 2, बराबर. आई का वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल अंदर आएगा. फैक्ट का पहला वैल्यू कितना था, आई इज इक्वल टू 1 के लिए 1 था, बराबर. अभी कितना हो जाएगा, 1 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 2 है. आई का वैल्यू कितना है, 2 है. सो 1 इंटू 2, तो कितना जाएगा फैक्ट में, 2 जाएगा. तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू जब 2 है तो फैक्ट का भी वैल्यू 2 हो रहा है, बराबर. 2 हो गया. फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा. अभी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3. आई का वैल्यू जैसे ही 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा. 3 इज लेस देन इक्वल्स टू, एन का वैल्यू कितना है, 5. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, बराबर. अभी फैक्ट का वैल्यू कितना था, प्रीवियस वाला 2 था, बराबर. सो 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई नाउ, 3. 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6. तो फैक्ट इज इक्वल्स टू 6. अभी फैक्ट में वैल्यू कितना हो गया, 6 असाइन हो चुका है. फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा. अभी कितना हो जाएगा वैल्यू, आई का 3 था, 3 प्लस 1 हाउ मच, कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 4. 3 plus 1 will become 4. 4 is less than or equals to, 4 is less than or equals to 5. ट्रू, बराबर. अंदर आएगा, बराबर.
फैक्ट का पहला वैल्यू कितना था? फैक्ट का पहला वैल्यू था 6, अपडेटेड वैल्यू 6 था, बराबर। 6 इंटू आई का वैल्यू कितना है अभी? 4 है। 6 इंटू 4 24। कितना हो जाएगा? फैक्ट का वैल्यू 24 हो जाएगा अभी, बराबर। अभी फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, तो आई का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, आई का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, मतलब आई का वैल्यू अभी बन जाएगा 5। फाइनल कितना हो जाएगा? 5। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। लेस नहीं है बट इक्वल तो है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट? फैक्ट का वैल्यू कितना है? प्रीवियस वैल्यू 24 है, बराबर। 24 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 5। तो यहाँ कितना आएगा? 24 इंटू 5 दैट इज 120। ओके, सो फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, अपडेट होगा। अभी 5 आई था, तो कितना हो जाएगा? 6। 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, बराबर। कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो लूप क्या, कंट्रोल जो है लूप के बाहर आएगा, अभी अंदर जाएगा नहीं और ये ऑपरेशन करेगा ही नहीं, वो अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आएगा और इस यहाँ से फैक्ट का जो भी वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू, इसको डिस्प्ले करेगा। नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैंने प्रिंटफ को अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं प्रिंटफ को अगर अंदर लिखता तो हर बार फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 2, फैक्ट इज इक्वल टू 6, फैक्ट इज इक्वल टू 24 एंड देन फैक्ट इज इक्वल टू 125। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 125, जो भी पूरा कैलकुलेशन होके जो आउटपुट आएगा वो मुझे चाहिए। इसके लिए मैंने प्रिंटफ को लूप के बाहर लिखा। Okay, so I think it should be 120, right? 5 factorial is how much? 120, not 125. Okay. So it will display what? 125. I have to make the correction here also. Understood or not? Understood or not? Yes, sir. अरे ये आपने मिस्टेक बताया नहीं, मैं 125 लिखते जा रहा हूँ, इट शुड बी 120। तो मल्टीप्लिकेशन किया तब पता चला कि ये 125 नहीं है, गलत था, इट शुड बी 120 ओनली, राइट। और ये जो मैंने डिस्प्ले किया ये बाहर किया, व्हाई? बिकॉज यू शुड गिव द ओवरऑल, द लास्ट आउटपुट आई एम इंटरेस्टेड इन, नॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज चेंजिंग। इस वैल्यू में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। इसके लिए मैंने जो प्रिंटफ जो है वो बाहर लिखा, अगर मैं अंदर लिखा तो हर बार वही वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया था। फैक्टर वैल्यू 2 हो रहा है, फैक्टर वैल्यू 6 हो रहा है, फैक्टर वैल्यू 24 हो रहा है, फिर बाद में बोलता है फैक्टर इक्वल 120। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रीवियस वैल्यू ऑफ फैक्ट, ये वैल्यूज मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। तो इसके लिए मैंने प्रिंटफ को बाहर लिखा और फैक्टर वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। टाइम इज ऑल्सो ओवर, तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, समझ में आया क्या? प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, सो do the practice. Practice is very important for this subject. Why I'm repeating this thing again and again? Because you will not be able to understand this subject until and unless you do the practice. ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, don't worry about that. Now you can write your attendance in chat box.
All of you understood today's lecture? All of you understood or not? Please give me confirmation. Arshit, Jeet, Saloni, Mihir, Himaya, Rishabh. Understood or not? देखो ये बेसिक्स अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझने वाला. Once you are clear with these basics, then you can easily understand these topics.